Hi there, my name is Eki Tyagi and I welcome all of you to my YouTube channel ASLN Institute of English Language. In the last video, Dr. Saresh, one of my students, asked me to make a video on collocation. So today I'm going to make a video on that. So it's a very important topic in English. We should study it in order to improve our English and communication skills. So friends, without wasting the time, I'm going to jump into the lesson today. Let's begin. The collocation. First of all, we are supposed to understand the definition of collocation. What is collocation? A collocation is a combination or a group of two or more than two words that is used together, such as keen on, absent from, and make an effort. Or you must have seen a lot of words together. Generally these words are used. So collocation, actually, what does collocation do in English? What is the important role which it plays in English language? So this is facilitate language. I mean that it makes language very easy, and collocation make it easy to avoid the overused and ambiguous confusing words like very and most, etc. These type of words unnecessarily we generally use in English, because we don't know what word we have to use, but we keep on using additionally. तो यहाँ पर collocation it plays a very important role, and ये हमें उन overuse जो भी words हमारे होते हैं या जो हम unnecessarily use करते हैं, जो जिनकी आवश्यकता नहीं होती language में, तो उनसे बचाने के लिए हमें collocation use करना होता है. And the second thing in plain word, if I say in plain English, so the collocation हमेशा हमें help करता है चीज़ों को याद रखने के लिए. Suppose अगर आप इतनी सारी preposition English में हैं, there are a lot of prepositions, so it is not possible for us to keep all the preposition in mind, okay? या फिर उनका जो use करने का तरीका होता है, it is quite difficult to remember, और we cannot mug up that कि हम सारे words को एक traditional way में याद करके उनको use करें कि इन कहाँ use होता है, on कहाँ use होता है, for कहाँ use होता है, over कहाँ use होता है. तो इसका एक बहुत अच्छा तरीका भी collocation माना जाता है, because collocation में क्या होता है, it is combination as I told you of two or more than two words. तो वहां पर किसी भी एक शब्द के साथ, जैसे आप adjective के साथ या noun के साथ या verb के साथ किसी preposition को use करके एक word create करते हैं. It's a sort of compound word. कई बार इनको phrases भी हम कहते हैं, ठीक है? तो वहां पर जो preposition आप use कर रहे हैं उस शब्द के साथ, वो बहुत आसान हो जाता है अपने दिमाग में रखने के लिए. जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ, इंटरेस्टेड. तो इफ आई से दैट आई एम इंटरेस्टेड, तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में इन आएगा, दैट इज आई एम इंटरेस्टेड इन म्यूजिक. तो यू कैन नॉट से दैट आई एम इंटरेस्टेड टू म्यूजिक और आई एम इंटरेस्टेड ऑन म्यूजिक, नो. इसी तरह सपोज आप किसी कोलोकेशन को सीखते हैं, एब्सेंट फ्रॉम, तो शी वाज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास टुडे, तो ये एक बाय डिफॉल्ट बन जाता है. I mean that automatically start coming to your mind and hitting your mind. तो फ्रेंड्स, as I told you earlier कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है. और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों प्लीज एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट यू मे हैव अ लॉट ऑफ वीडियोस इन अपकमिंग डेज, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस अभी और भी आने वाली जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो आपके इंग्लिश को बहुत बहुत अच्छा कर देगी. एंड दैट्स द गारंटी एंड द प्रॉमिस ऑफ माइन. एंड फ्रेंड्स, आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें ताकि मैं थोड़ा सा मेरा आई मीन दैट आप मुझे encourage करेंगे to make a lot of videos in future. And friends, by using a pair of the words that fits the context better and has a more precise meaning, तो जो एक precise meaning होता है, एक निश्चित meaning जो होता है, by using a pair of the words, एक जो आप पेयर यूज करते हैं वर्ड्स का, दैट फिट्स द कॉन्टेक्स्ट बेटर एंड हैज अ मोर प्रिसाइज मीनिंग, जो एक बहुत निश्चित अर्थ देता है वहां पर. कोलोकेशन हेल्प्स आवर इंग्लिश साउंड नेचुरल लाइक अ नेटिव स्पीकर्स. और अगर हम कोलोकेशन को अपनी भाषा में यूज करने लगते हैं, भाषा में ही नहीं दोस्तों, आई मीन दैट अपने स्पीकिंग में ही नहीं बल्कि अपनी राइटिंग में भी अगर आप हम यूज करते हैं इनको, तो
यू नो दैट इट लुक्स वेरी नेचुरल और इट साउंड्स वेरी नेचुरल। तो ये आप एक नेचुरल साउंड देकर एक नेटिव स्पीकर्स की तरह लगने लगता है, और आप यू जस्ट पीपल फाइंड यू वेरी एक्सपर्ट और वेरी प्रोफेशनल। तो कभी भी नहीं लगता कि आप इंग्लिश को नहीं जानते। तो फ्रेंड्स, दैट इज कॉल्ड द कोलोकेशन। तो इसको और थोड़ा सा डीपली समझेंगे, और कोलोकेशंस के बारे में अगर आपको और भी ज़्यादा वीडियोस चाहिए या और ज़्यादा लेसन्स चाहिए तो प्लीज़ आपको मुझे मैसेज करना होगा उसके लिए, एंड आई विल बी सेंडिंग यू स्टफ। ओके, आपको जो PDF है मैं वो भेज दूंगा, बिकॉज ये इतना एक वास्ट चैप्टर है जो कि इट इज़ नॉट पॉसिबल। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि सभी पर वीडियोस बनाऊंगा अपने, लेकिन अगर आप थोड़ा सा एडिशनल चाहते हैं और एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे आपको व्हाट्सअप करके, बिकॉज जो व्हाट्सअप नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देता हूँ उसी पर आप मुझे जब मांगेंगे, इफ़ यू आस्क मी फॉर द स्टफ एंड द PDF, तो आई विल बी सेंडिंग यू डेफिनेटली। लेकिन अगर आप मांगेंगे नहीं तो हाउ कैन आई गेट टू नो, हाउ कैन आई कम टू नो, कि मेरे को कैसे पता चलेगा कि आपको चाहिए। तो आशा करता हूँ कि कोलोकेशन के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया मिला होगा, या कोलोकेशन के बारे में आपको समझ में आया होगा कि कोलोकेशन एक्चुअल होता क्या है। फिर से एक बार मैं फिर रिपीट करना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू ऐड ऑन समथिंग कि कोलोकेशन इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स जिसको आप सेट करके कहीं भी यूज करते हैं। कई बार आपने देखा होगा हैप्पीली मैरिड और ऑल अलोंग, ये जितने भी वर्ड्स होते हैं दीज आर द, हालांकि इनको इंग्लिश में हम फ्रेजेस भी कहते हैं, और लेकिन जब हम इनको कोलोकेशन में स्टडी करना स्टार्ट करते थे तो इट बिकम्स वेरी इजी ओके टू यूज देम। तो देखिए टाइप्स ऑफ, अब लेट्स प्रोसीड। टाइप्स ऑफ कोलोकेशन की बात करते हैं तो नाउन एंड प्रेपोजिशन कोलोकेशन, एडजेक्टिव एंड प्रेपोजिशन कोलोकेशन, वर्ब्स एंड प्रेपोजिशन कोलोकेशन, एडवर्ब्स एंड वर्ब कोलोकेशन, एडवर्ब्स एंड एडवर्ब कोलोकेशंस, एडवर्ब एंड एडजेक्टिव कोलोकेशन, एडजेक्टिव एंड नाउन कोलोकेशन, वर्ब एंड वर्ब कोलोकेशन, वर्ब एंड एडवर्ब कोलोकेशन। तो देखो इट इज क्वाइट अमेजिंग गाइस। यहाँ पर अगर आप देखें तो इट इज गोइंग टू मेक यू अमेज कि यहाँ पर वर्ब के साथ वर्ब का भी कोलोकेशन हम क्रिएट कर लेते हैं। नाउन एंड नाउन कोलोकेशन हो जाता है, बिजनेस कोलोकेशन, टाइम कोलोकेशन एंड अदर कोलोकेशन, बिकॉज आई हैव मोर देन can you believe that I can teach you more than 22 types of collocations, okay, जो हमारे combinations होते हैं। तो इसमें थोड़ा सा मैं आपको स्लाइड नंबर 2 में इसका थोड़ा सा एक प्रीव्यू देना चाहता हूँ, जिसको टीजर कहते हैं, एक ट्रेलर की तरह। और अगर आपको ये अच्छा लगे और आप सीखना चाहते हैं कोलोकेशन तो मुझे व्हाट्सअप जरूर करें, एंड डेफिनेटली आई विल बी सेंडिंग यू। पिछली लास्ट टाइम मैंने जैसे चित्रा मैम का नाम लिया था, और लास्ट टाइम मुझे सरेश और एक दो स्टूडेंट्स ने भी बोला कि कोलोकेशन पर वीडियो बननी चाहिए। तो डेफिनेटली देखो टुडे आई एम मेकिंग दिस वीडियो ऑन कोलोकेशन। तो फ्रेंड्स, अगर आप if you ask me to make a specific video on a topic, I'm ready all the time to, लेकिन मुझे पता होना चाहिए कि आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर, किसी एक टॉपिक पर आप जो भी आपके लिए खास टॉपिक है या जो डिफिकल्ट आपको लगता है, आप चाहते हैं उस पर वीडियो बनाना, यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन दैट। तो जैसे कोलोकेशन को स्लाइड नंबर 2 में हम देखते हैं, हिज फियर ऑफ फ्लाइंग मेड ट्रेवल डिफिकल्ट। तो यहाँ पर अगर आप देखें, ये फियर आपका नाउन है एंड ऑफ आपका प्रेपोजिशन, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ दैट, कि उसका जो बाय एयर यात्रा करने का डर है उसने यात्रा को डिफिकल्ट बना दिया था। तो दैट कि कुछ लोगों को डर होता है, आई मीन दे गेट स्केयर्ड ऑफ द फ्लाइंग, आई मीन एरोप्लेन एंड फ्लाइंग। तो that is a fear of flying, fear of cycling, fear of speaking, fear of anything, okay, you can use or you can make sentences। और please, अगर आप सच में पूरी you are dedicated to learning English, तो प्लीज मुझे इसमें आप 2-3 सेंटेंसेस बनाकर या तो आप कमेंट बॉक्स में डालें या फ्रेंड्स मुझे व्हाट्सएप करें, सो दैट आई गेट टू नो कि भाई आप मेहनत कर रहे हैं और आपके लिए वीडियोस बनाना एक खास मकसद भी है और एक वैल्यू रखता है, ठीक है, और आपके लिए वीडियो बनाना वैल्यूबल है। नेक्स्ट देखिए, माय रिलेशनशिप विद जॉन इज वंडरफुल।
तो इफ यू सी दैट नाउन रिलेशनशिप and with, that is preposition, तो relationship with John is wonderful, तो यहाँ पर ये नाउन के साथ हमने preposition। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर हमें ये पता लग जाता है कि किस वर्ड के साथ हम कौन सी preposition को किस वे में यूज कर सकते हैं, तो प्रैक्टिस से हम इन चीज़ों को अपने दिमाग में रख सकते हैं और आगे आने वाले टाइम में जब भी कभी whenever you are going to speak English with people or like publicly you are going to deliver your speech, you are going to make your speech in front of the people or crowd, तो believe me you are going to be very confident and competent speaker, an eloquent speaker, तो आप कभी भी फील नहीं होंगे, जस्ट यू आर गोइंग टू स्पीक वेरी इफिशिएंटली, आप बहुत इफिशिएंटली बोलेंगे, इसमें कोई भी डाउट नहीं है दोस्तों। लेकिन उसके लिए थोड़ा सी मेहनत आपको करनी होगी। ही इज ब्रिलियंट एट फुटबॉल, यहाँ पर ब्रिलियंट का मतलब एडजेक्टिव, ये आपका एडजेक्टिव है, ठीक है, और प्रेपोजिशन उसके साथ हमने ऐड, जैसे और भी एक दो एग्जांपल हम यहाँ पर ले सकते हैं, जैसे ही इज गुड एट कुकिंग, तो जनरली गुड के साथ हम इन प्रेपोजिशन को ले आते हैं, जैसे मैं गाने में अच्छा हूँ, तो हम यूजुअली एक सेंटेंस बना लेते हैं, आई एम गुड इन सिंगिंग। सिंगिंग यहाँ पर जिरेंड है आपका, बट ग्रामेटिकली इट इज कंसिडर्ड टू बी रॉन्ग, ये बिल्कुल इनकरेक्ट माना जाता है। तो ही इज ब्रिलियंट एट फुटबॉल, ही इज गुड एट फुटबॉल, तो यहाँ पर गुड एंड ब्रिलियंट दोनों ही एडजेक्टिव और उसके साथ हमने एट को प्रेपोजिशन की तरह यूज किया। हालांकि अमेरिकन इंग्लिश में इनका यूज कर लिया जाता है, बट बिकॉज अगर मैं ब्रिटिश इंग्लिश की बात करूँ तो उस वहाँ पर हम एट का यूज करते हैं, गुड एट, बैड एट, ब्रिलियंट एट, ठीक है। और दे आर इंटरेस्टेड इन मूवीज, तो देखिए यहाँ पर इंटरेस्टेड जो आपका है, इंटरेस्टेड, दिस इज एडजेक्टिव, जो कि इंटरेस्ट का वी कैन से दैट एक्शन थर्ड, जिसको पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, जो कि स्टेटिव फॉर्म में हम यूज करते हैं, और उसके साथ इनका हमने यूज किया है प्रेपोजिशन। तो दे आर इंटरेस्टेड इन मूवीज, तो एडजेक्टिव के साथ हमने प्रेपोजिशन। तो यहाँ पर दो कोलोकेशन ये हमारे ब्रिलियंट एट एंड इंटरेस्टेड इन दोनों कोलोकेशन है। इसके बाद हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट टू। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर वर्ब की तरह यूज किया है। आपने देखा होगा जब आप हिंदी मूवीज, बॉलीवुड में मूवीज देखते हैं, तो जब कभी आपका जो लॉयर होता है, जो आपका एडवोकेट होता है, वो कोर्ट में बोलता है आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड, तो ऑब्जेक्ट दैट मीन्स विरोध करना, यानी किसी चीज का आप जब विरोध करते हैं, तो आई ऑब्जेक्ट टू योर ओपिनियन, तो मैं आपका जो विचार है उसका विरोध करता हूँ। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के बाद हमेशा हम प्रेपोजिशन टू का यूज कर सकते हैं, कर सकते नहीं बल्कि करते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के बाद हम टू का यूज करते हैं, दिस इज वर्ब एंड प्रेपोजिशन। एंड शी ऑलवेज आस्क मी फॉर मनी, तो यहाँ पर देखें आप, जो थोड़ा सा बोल्ड यहाँ पर लिखा है, आस्क के साथ फोर हमने यूज किया है, तो शी आस्क फॉर मनी, यानी वो हमेशा मुझसे पैसे मांगती है। तो आस्क फॉर, ये दिस इज फ्रेजल वर्ब, इसको हम वर्ब फ्रेज भी कहते हैं, लेकिन जो कि चूंकि मैं आज सिंस आई एम टीचिंग यू कोलोकेशन, तो मैंने इन सभी को कोलोकेशन की कैटेगरी में आपको रखकर पढ़ाना बेहतर समझा है। तो यहाँ पर वर्ब एंड उसके साथ प्रेपोजिशन। यहाँ पर देखिए आप, आई नेवर न्यू, तो नेवर आपका एक एडवर्ब है, दिस इज नेवर यानी कभी नहीं, दिस इज एडवर्ब, और उसके साथ हमने एक वर्ब की सेकेंड फॉर्म को यूज किया, दिस इज वर्ब। तो यहाँ पर आप लास्ट में देखें सेंटेंस के, बिकॉज मैंने सभी सेंटेंस के लास्ट में लिखा है एडवर्ब, उसके साथ वर्ब को यूज किया, एंड दैट बिकेम अ कोलोकेशन, दैट आई नेवर न्यू राम वाज मैरिड, तो मेरे को कभी भी पता नहीं था कि राम शादीशुदा था, एंड आई थॉट, मैं तो ये सोचता था ही वाज सिंगल। तो दिस इज you know that tremendous use of collocation। अगर आप सच में इस पूरी सीरीज को कंप्लीट करें और आप मुझे टेक्स्ट करें दोस्तों, इफ you know WhatsApp me, तो डेफिनेटली आई विल बी गिविंग द PDF फाइल ओके ऑफ दैट, और चाहे तो आप बुक्स भी ले सकते हैं। और दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं, आई क्वाइट एग्री टू योर आंसर, मैं पूर्णतः पूरी तरह आपके आंसर से सहमत हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों एक चीज का आपको खास ध्यान रखना है कि अग्री विद पर्सन, यानी कोई समवन, कोई भी जब व्यक्ति, आप किसी भी व्यक्ति से सहमत होते हैं तो अग्री विद समवन, एंड अग्री टू द स्टेटमेंट और
कोई भी थिंग या किसी भी चीज से आप सहमत हो तो देन यू हैव टू से अग्री टू, तब आपको एग्री टू का यूज करना है। तो अग्री यहाँ पर क्वाइट एक एडवर्ब है और एग्री आपका वर्ब है, तो दिस बिकेम दैट एडवर्ब एंड वर्ब कोलोकेशन यहाँ पर बन गया। एंड द नेक्स्ट आप इसमें यहाँ पर हम देखेंगे वी स्ट्रांगली कंडेम दिस वाइल्ड एंड क्रूअल एक्ट। तो यहाँ पर देखेंगे स्ट्रांगली यानी बहुत मजबूती से, आप कंडेम यानी कड़ी निंदा करते हैं इस जंगली और निर्दय जो कृत्य है उसका। तो यहाँ पर देखें आप स्ट्रांगली इज एन एडवर्ब, जो स्ट्रॉन्ग एडवर्ब स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव से हम ly लगाकर आपका एडवर्ब क्रिएट करते हैं, और यहाँ पर ये कंडेम आपका दैट इज वर्ब। तो देखेंगे वी न्यू ऑल अलोंग दैट ही वाज डूइंग दिस वर्क, और ऑल अलोंग का मतलब होता है शुरुआत से यानी पहले से ही, दैट इज शुरुआत से ही हमें पता था कि वो इस काम को कर रहा था। तो यहाँ पर ऑल अलोंग दैट इज एडवर्ब एंड क्योंकि ऑल भी यहाँ पर एडवर्ब की तरह यूज हुआ है एंड दैट्स अलोंग भी आपका एडवर्ब है। एंड दे ड्रैंक क्वाइट अ लोड ऑफ वाइन, और उन्होंने बहुत ज्यादा शराब पी। तो यहाँ पर क्वाइट के साथ अ लॉट ऑफ का यूज हुआ है, हालांकि कुछ लोग अ लॉट ऑफ को आई मीन दैट यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह लेंगे, लेकिन बिल्कुल एडजेक्टिव की तरह भी यूज होता है, बट इट इज शोइंग द एक्शंस क्वालिटी। तो ये कंबाइंड बिकॉज एक यहाँ पर फ्रेज बन जाता है, तो जब ये फ्रेज हो जाता है तो एक कलेक्टिवली इसका एक मीनिंग हो जाता है, इसीलिए इसको कोलोकेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर ये एडवर्ब का ही रूप ले लेता है, तो एडवर्ब प्लस एडवर्ब ही हम इसको कंसीडर करते हैं। एंड नेक्स्ट देखिए द एनुअल टर्नओवर ऑफ दिस कंपनी इज $500 million। तो ये आपका टाइम कोलोकेशन है, जो आपने एनुअल टर्नओवर यहाँ पर यूज किया है, दिस इज द टाइम कोलोकेशन बिकॉज ये टाइम को दिखा रहा है। एंड डोंट कम बैक अंटिल यू क्लोज द डील, ये बिजनेस कोलोकेशन है। क्लोज द डील जनरली हम बिजनेस एक्टिविटीज में यूज करते हैं अपने बिजनेस वगैरह में, तो वापस मत आना जब तक कि आप यानी डील क्लोज को करने तक आप वापस मत आना। तो दोस्तों ये एक शुरुआत थी, एज आई टोल्ड यू दिस अ टीजर, ओके, और ये एक ट्रेलर था, खाली एक पिक्चर थी छोटी सी। और अगर आपको कोलोकेशन में इंटरेस्ट है, सपोज इफ यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग मोर कोलोकेशन इन फ्यूचर, तो आई कैन मेक अ लॉट ऑफ वीडियोस ऑन दैट, बट बिफोर दैट you should show your interest okay to me by sending me some message and WhatsApp message, and by subscribing my channel and liking my videos, so that I may get to know you are taking interest in that, or you are very interested in learning the new things वो भी differently। तो तभी मेरे को पता लगेगा कि आप वाकई वीडियोस में बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, और मेरे लिए और आपके लिए सारी वीडियोस वैल्यूबल है, तो तभी मेरे लिए टाइम निकाल कर आपके लिए वीडियोस बनाना एक अच्छा रहेगा। तो दोस्तों अभी तक के लिए इतना ही बस, थैंक यू सो मच। वंस अगेन आई एम गोइंग टू मेक योर रिक्वेस्ट, ओके, वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। आप इस वीडियो को एंड तक देखें और आगे मुझे आप व्हाट्सएप करें, सो दैट आई कैन मेक अ लॉट ऑफ वीडियोस ऑन दैट, और मैं सारी चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियरली ये सारे क्लियर कर दूंगा, और आपको लाइफ टाइम कभी कोई प्रॉब्लम नहीं